3 سال پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے؟ جی ہیں، جنگل کے بادشاہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، جو شے کرتا رہے، شیر ہیں، انڈے دیں بچے دیں. ویسے اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی 2 گنا ہو گئی ہے، برآمدات میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے. اچھا 2018 میں قرض پہنچ جائے گا آپ کا 90 بلین تو ڈالر تک. اب وہ چکائے گا کون؟ یہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا، ان کو یہ گروی ڈال رہے ہیں بڑی بےرحمی کے ساتھ اپنی کاروائیاں ڈالنے کے لیے. ایک بیماری ہے ان کو، زر مبادلہ. ٹھیک ہے، نتیجہ یہ ہے کہ موٹر وے سے لے کے اپنی اہم عمارتیں تک یہ لوگ گروی رکھ رہے ہیں. خدا جانے یہ مینار پاکستان تک نوبت چلی جائے. ایک جام صادق علی ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، بڑی رنگین شخصیت تھی ان کی. تو سنتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ان کو کہا تھا کہ دیکھنا جام صاحب، قائد کا مزار نہ بیچ دینا. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ وہ رہ گیا محفوظ ہونا. تو بھائی یہ تو محفوظ اگر ہے تو ان کی وجہ سے ہے جو جانیں دے رہے ہیں، جو زندگیاں دے. یہ جو چوری کھانے والے مجنو ہے نا، یہ ہمارا سیاسی ایلیٹ، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو جو جانیں دے رہا ہے وہ محفوظ کر رہا ہے نا، جو خود کو غیر محفوظ کر کے چل رہا ہے. تو معیشت کا میں نے آپ کو آؤٹ لائن بتا دی. اب نتیجے پہ چھوڑے نا اس کو، میں نے آؤٹ لائن دے دی ہے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بیسٹ فائنانس منسٹر کا ایوارڈ ملا ہے جن کی طرف سے. اس طرح کے ایوارڈز ملتے ہیں، یہ یاد رکھنا، وہ عوام دوستی کے لیے نہیں، عوام دشمنی کے لیے ملتے ہیں. یہ شوکت عزیز کو بھی ملا تھا، لیکن یہ فنکاری ہے بہت بڑی. بہرحال ملا ہے، مبارک ہو ان کو، بلکہ اس ملک کے عوام کو مبارک ہو. حسن صاحب، سولو فلائٹ عمران خان کی خوبی ہے یا خامی ہے؟ بہت سی پارٹیوں کا اعتراض ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، سولو فلائٹ کے شوقین ہیں. یار کیا میں اگر میرے پاس اگر آپشن ہو کہ میں نے ایک طرف چوروں کا جتھا میرے ساتھ ہو یا میں اکیلا چلوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب کو ساتھ. لیکن یہ گھٹیا قسم کے جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں. بھائی جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور بری سے بری جمہوریت، اور اچھی سے اچھی امریت. فضول. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے رنگین جملے جو ہیں انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو بڑا آدمی عام طور پہ تنہا ہوتا ہے، اس کا سفر بڑا اذیتناک ہوتا ہے، تنہائی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بلندی پہ تنہائی ہوتی ہے. ایک اور بات، ٹھیک ہے، اقبال کا ایک مصرع ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اب یہ سارے جو مکڑ ہیں، یہ جتنے جمہوری مکڑ ہیں، یہ ایک طرف ہو گئے ہیں. شیر کے شکار کے لیے صف بندی ہو رہی ہے. اور لیکن عمران کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بزرگ کی، جن کا میں نام بھول رہا ہوں، میرے ذہن میں ہے لیکن میں چونکہ آئی ایم ناٹ شیور اس لیے میں نام، اپنا جب بالکل ان کی عمر کا، زندگی کی آخری سٹیج پہ پہنچے، 80-85 سال عمر ہو گئی، تو انہوں نے دن رات عبادت، کھانا پینا بھی بھول جاتے. اور یہ تو ان کے اہل خانہ نے، دوستوں نے، احباب نے، جو ان کے چاہنے والے تھے، محبت کرتے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ تو کوئی خیال کریں. تو آپ اتنا ہر وقت یاد الہی میں مگن رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں بات سنو، جب ریس ہوتی ہے، گھوڑ دوڑ ہوتی ہے گھوڑوں کی، تو جب گھوڑا فنشنگ پوائنٹ کے قریب پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے. نا عمران خان کو یہ کرنا چاہیے، اچھا، تو گھر گھر جانا چاہیے. سمبولک بات ہے نا، گھر گھر کا مطلب یہ نہیں ہے تو ایک محلہ نہیں بھگتتا. ماشاءاللہ آبادی اتنی ہے، ایک ہی چیز میں تو بڑھوتری ہو رہی ہے اس ملک میں، اور آبادی ہے، باقی تو یا مہنگائی ہے، اس طرح کی چیزیں. اس چاہیے کہ کراچی خاص طور پہ آئے پرسنلی شور، مجھے بتایا گیا ہے، اور جو عمران خان کے حریف ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دلچسپ بات انہوں نے مجھے بتایا. مذاق میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کہیں بات نہ کرنا. میں نے کہا میری تو کون سی بات ہوتی ہے جو میں نے بات کرنی. انہوں نے کہا کہ از نو آئیڈیا دیٹ ہول کراچی از ویٹنگ فار ہم. اگر وہ جا کے وہاں چند دن وہاں لگائے، باقی بھاگ دوڑ، جیسے یہ پچھلے والے رائے ونڈ
तैयारी में उसने की थी. बाकी देख लेते हैं, उसका बनता वो ही अपने सोलो मकासद फ्लाइट है कामयाब यार. निकलेगा, मतलब देखो एहतसाब मैं होगा. बहादुर हूँ जी. मगर हारे हुए लश्कर में ये टोटल अपोजिशन लोग हैं ना. अभी इसने पिछले दिनों बिलावल ने लिखा है कि रूठे हुए जो छोड़ के जा चुके लोग तो वापस आ जाएं. तो मैंने उसमें कॉलम लिखा है कि अहमद फराज साहब ने लिखा था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. जी. तो किसी ने फराज साहब को छेड़ा, ये अजीब ये फिदवी किस्म का चवल किस्म का शेर है कि वापस आ फलाना. तो उन्होंने कहा ये मकरे शायर है, उसको वापस तो आने दे, मैं उसको फिर जाने के काबिल रहने नहीं दूंगा. सो ये जो बुला रहे हैं ना भाई मुझे छोड़ के चले गए, भाई क्यों छोड़ के चले गए? लोग तुम्हारे लिए 3-3.5 नस्लें खा गई ये पार्टी, आज भी कहते हैं वापस आ जाओ. इसका मतलब है ये बिलावल के बेटे और फिर ग्रैंडसन तक ये सिलसिला चलेगा. और कितनी नस्लें खानी है, बस करो भाई. इनका हमारी नस्लें खाने से पेट नहीं भरता, हमारा माल खाने से पेट नहीं भरता. यू आर होपफुल कि कुछ ना कोई आउटकम निकलेगा इस 30 अक्टूबर को जो फाइनल होने वाला है. सुनो देखो बेटा, एक बुनियादी बात, जिंदगी में जब आप खैर के लिए चलते हो ना तो इस बात से आप मावरा होते हो कि नतीजा क्या होगा. सक्सेस की एक और ही डेफिनेशन है, ये चंपू किस्म की कामयाबियां होती हैं. ये माल मनाल मनसब इट इज इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फारिग चीजें, एहतसाब होगा लेकिन नवाज नहीं, शरीफ का इस हिसाब से. एहतसाब तो इसके बगैर तो माशरा बर्बाद समझो. जो कुर्रायस पे घटिया तरीन माशरे हैं वो घटिया इसलिए नहीं है कि अल्लाह पाक ने वो किसी का किडनी नहीं रखा तो किसी का दिल नहीं है या किसी की टांगें एक टांग दी हुई है पूरी कम नहीं. वहां एहतसाब नहीं है. जितना बड़ा आदमी उतना कड़ा एहतसाब. ये है इस्लाम का एहतसाबी निजाम. या तो मुर्गी चोर को पकड़ते हैं और जो संडे हैं खुले फिरते हैं. अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मजीद मौज़ूआत को शामिल करेंगे. देखते रहिए मेरे मुताबिक हसन साहब, हमारी कौम जमहूरी निज़ाम और आमरीत निज़ाम में पेंडुलम की तरह घूम रही है. जब जमहूरी हुक्मरान आते हैं तो हम गैर जमहूरी हुक्मरान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, एंड वाइस वर्सा. ये क्या रवैया है, नॉर्मल रवैया है, क्या है? हम पागल लोग नहीं हैं, हम हालात के मारे हुए बदनसीब लोग हैं. हम जमहूरियत से डसे जाते हैं, उनके हाथों खज्जल खार होते हैं, जलील होते हैं. फिर हम देखते हैं फौजी हुक्मरान की तरफ, ओ यार आ जाते हैं अखियां उड़ीते हैं. ठीक है, फिर वो आता है, फिर वो चंद साल वो घसीटता है, कुछ नहीं मिलता. खैर नहीं, गदागरों की तरह भाग रहे हैं कि साहब दे दे कुछ अल्लाह के नाम पे. इस गाड़ी में वहां से शीशा चढ़ा है, डांट मरी, उस गाड़ी के. ये इस तरह होता क्यों? उसकी वजह है दोनों हुकूमतों से, यानी जमहूरी और गैर जमहूरी, लोग क्यों मुतनफर हो जाते हैं, क्यों उकता जाते हैं, क्यों दूसरी तरफ भागते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. क्यों? दोनों डिलीवर नहीं करती, दोनों ही कुछ नहीं देते. क्यों नहीं देते? चूंकि एहतसाब नहीं होता. ये बड़ी अजीब बात है, पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं. अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना, मेरी अकल पे ना रहना. जी. ठीक है, आपको अपने दिमाग पे बोझ डालना होगा, मैं कोशिश करता हूं समझाने की. क्यों नहीं डिलीवर करते? लोगों का हक उन तक पहुंचता ही नहीं. अगर लोगों तक 100 रुपया जाना चाहिए, 80 तो खाया जाता है. अब पूछो कैसे खाया जाता है? हुक्मरान जो होता है, या यूं कह लो कि जो हुक्मरान जो होते हैं, मॉडर्न मनी है, जदीद पैसा, रातों रात खरबों रुपए बना. ये क्या है? एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन. अच्छा. यानी उस इंफॉर्मेशन तक रसाई जहां मेरी और आपकी नहीं है, कॉमन मैन की नहीं. हुक्मरान को पता होता है एयरपोर्ट यहां बनना है, इंडस्ट्रियल स्टेट यहां बननी है. ठीक है, आप दोजे वहां से खरीदी जानी है, इंजन वहां से खरीदे जाने हैं, अब बाद में रिंग रोड वहां से जानी है, एयरपोर्ट. अच्छा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है कबल अज़ वक्त होती है. फिर उसमें वारदात करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है. स्पेसिफिकेशंस ही वो हैं जो सिर्फ आपकी कंपनी की है और मैं आपसे मुक चुका हूं. अच्छा, अब ये सारा मामला जाता है नीचे तक. होता क्या है कि जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता. 100 रुपए मेरा हक बनता है, मैं अवाम हूं,
मुझ तक 100 पहुंचे, वो 10 पहुंचता है, 90 खाया जाता है। अच्छा, अब ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो वेस्ट में भी है, मजहब दुनिया में, लेकिन वहां इख्तिसाब का निजाम बहुत खौफनाक है। टेम्प्ट वो भी होते होंगे, वो कोई फरिश्ते नहीं है, हाँ, ललचाते वो भी होंगे, लेकिन उनको पता है कि अकाउंटेबल, कुत्ता बना के रख देंगे। होने वाला है। अब अकाउंटेबिलिटी इतनी खौफनाक है। एक छोटी सी मिसाल, मैं चीज इंपोर्ट कर रहा हूं 100 रुपए की, अच्छा, इस पे 100 रुपए ड्यूटी है, आप ऐसा रो चेंज कर दो, मेरी शिपमेंट चल पड़ी है वहां से, ठीक है, आप कर दो। अब आप मेरे कंपेटिटर हो, आप तो अगर 1 अरब का मंगवा रहे हो तो 1 अरब ड्यूटी देनी पड़ेगी 100 में। मैं बड़ा बच्चेगाना तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आपने वो 10% कर दी है तो मैंने तो, मेरी तो दिहाड़ी लग गई अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, ठीक है। सो इस तरह की वारदातें जो हैं वो चलती हैं बहुत ज्यादा। LNG है, रेलवे इंजन खरीदने हैं, या आर्म्स एंड एमुनिशन, वो जो आपका पकड़ा गया था एडमिरल क्या मंसूरुल हक की, वो क्या वारदात थी, ये था क्या? चूंकि कोई पूछने वाला नहीं, धड़ल्ले से करते हैं, अवाम के हिस्से का रिस्क खा जाते हैं, ये रौला है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कुदरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इस मुल्क में कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर एक और, चूंकि एहतसाब कोई नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं ओरिएंटेन बनाऊं, कर लो जो करना है, मैं मेट्रो करूं, ट्रांसपेरेंट भी ना रहने दूं, उसमें डंडियां भी मारूं, जितने की मैंने प्रॉपर्टी दाएं बाएं खरीदी है, या जो उसके लिए उसको उसमें से निकाल दूं, उसको उसमें से निकाल दूं, ये सारा जो जुगाड़, ये दोनों तरह का, जमहूरी हो या गैर जमहूरी, दोनों हुक्मरान एहतसाब से मावरा होते हैं। इसलिए ना जमहूरी कुछ देता है ना गैर जमहूरी, क्योंकि वो खुल खेलते हैं, तो अवाम इधर से खैरात नहीं मिलती, उधर भागते हैं, फिर उधर से मायूस होते हैं, उधर फिर उधर हो जाते इस तरह। हैं। अच्छा, अभी आबादी बढ़ने की बात हो रही थी, मर्दमशुमारी पे हुकूमत तारीख पे तारीख दी जा रही है, सवाल से हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक में फिर खुशामदीद। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मर्दमशुमारी के हवाले से कहा है कि मर्दमशुमारी जंगी बुनियादों पर की जानी चाहिए, इसके बगैर निजाम हुकूमत चल नहीं सकता। हुकूमत है कि वो तारीख पे तारीख दी जा रही है, हम भी तो तबसरे पे तबसरे किए जा रहे हैं। जी। मुनीर नियाजी साहब का अल्लाह ने गरीक रहमत करे, एक शेर है, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। हम भी तबसरे ही करते हैं, बस ठीक है, हम अवाम भी क्या लोग हैं। ये बात मुद्दतों पहले हुई थी, जब मैं इस पे कुरलाया था कि भाई बिल गेट्स के घर बारात जानी हो ना, बिल गेट्स के घर, अगर उसको ये अंदाजा नहीं होगा, एक मतलब रीजनेबली मतलब गुड अंदाजा कि भाई 500 होगा बाराती, 5000 होगा, 15000 होगा, 25000 होगा, तो बिल गेट्स का पैसा किसी काम का नहीं, तो वैसे ही भूखे लगे, खा पी जाते हैं सारा, एक आपके पल्ले कुछ नहीं, ऊपर से कर्जे बढ़े, और आपको ये भी नहीं पता कि बारात कितने बंदों पे मुश्तमिल है, किधर कितना इन्वेस्ट करना है। जी। 16 करोड़ हैं, 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, छूटे। हाउ कैन यू प्लान? मैं खानदान का, बड़े खानदान का मैं सरबराह हूं, मुझे ये नहीं पता कितने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितने बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी में, कितना बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सा घर में बुजुर्ग बीमार है, बीमारी की नौयत क्या है, उस पर खर्च कितना। मैंने क्या घर चलाना है, खाक चलाना है। ये मुल्क मर्द में और बदनीयत है, बदनीयत। हसन साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि अब्दुल मनान ने हमें जापान से लिखी थी कि प्रेपरेशन या तैयारी की क्या अहमियत होती है जिंदगी में। पहली बात तो ये है, बुजुर्ग कहते हैं कि जिस खतरे से निपटने की तैयारी कर ली जाए वो आधा रह जाता है। फिर कहते हैं, ये गालिबन स्पेनिश है, मुझे अब याद नहीं मुहावरा, कि तैयार आदमी जो है ना वो कम से कम 4 आदमी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, जो आदमी तैयार नहीं है उससे सफर का आगाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, बदतरीन पछतावा जिंदगी में यह है कि नाकामी के बाद आदमी सोचे कि यार काश मैं तैयारी कर लेता। अच्छा, एक और कहते हैं ना, फलां को अपॉर्चुनिटी मिली, फलां को मौका मिला। याद रखना, जिंदगी में ये आपके तवस्सुत से, आपका जितना एज ग्रुप है माशाल्लाह, सब बच्चों, हमारे नौजवानों को,
کہ کہتے ہیں فلاں کو اپورچونٹی مل، اپورچونٹی بھی اویل وہی کرتا ہے جو تیار ہو، جو الرٹ ہو. ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپورچونٹی کنڈی کھڑکا آگے، وہ کہتی لعنت بھیجو اس کا، یہ تو خراٹے لے رہا ہے، میں بلا رہی ہوں جو جواب. اچھا ٹھیک ہے نا. اور آخری بات جو روحانیت کے حوالے سے، کہ جیسے زندگی کے لیے تیاری ضروری ہے نا، اسی طرح موت کے لیے بھی تیاری ضروری ہے.